Today we are going to discuss about the single phase half wave control rectifier. Okay. So I have already explained what is the difference between the single phase half wave uncontrolled rectifier and controlled rectifier, and which power electronic switching devices are used in the respective rectifier. That means uncontrolled for diode and control rectifier, you need to use thyristor or SCR. Okay. So I just try to explain the circuit diagram very similar to the single phase half wave uncontrolled rectifier. Only difference is in circuit is your switching devices. Okay. अनकंट्रोल रेक्टिफायर में सिर्फ हम लोग क्या यूज करते हैं, डायोड. यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एससीआर या थायरिस्टर. ओके, so that we are able to control the output voltage of the control rectifier. That's why it is known as the control rectifier. Okay. So I have already told that this is your supply voltage, that is sinusoidal, Vm sin omega t, and when this SCR in forward bias during the pi to 2 pi period. Okay, is it not? It is in forward bias during the pi to 2 pi. Okay, so during this period, anywhere you apply the gate pulse in the thyristor, the thyristor starts conduction. Okay, so that you are able to get the output voltage across the resistive load. So this is your gate pulse waveform. Suppose that at this instant, when the sinusoidal voltage waveform, suppose that at this degree, omega t equal to at 30 degree. At 30 degree, you are supply the gate pulse to the thyristor. Gate pulse waveform is similar to this one. Okay. So at this instant, this delay will be represented by alpha, but may be represented at a specific value 30 degree, 60 degree, something like that. Okay. I have represent here general value, that is alpha. Okay. So this is your gate pulse waveform. अब इस इंस्टेंट पे हम गेट पल्स सप्लाई कर दिए थायरिस्टर को. नाउ द थायरिस्टर स्टार्ट कंडक्शन, so that at this instant output voltage is follow just the supply input voltage up to this point. Okay, that means alpha to pi, we got the output voltage since the SCR start the conduction. Okay, and pi to 2 pi thyristor in reverse bias. Okay, so it does not start the conduction. So pi to 2 pi, there is no in the reverse bias. But after 2 pi, the SCR again becomes in forward bias, since the positive half cycle becomes across the thyristor. Okay, from the 2 pi. But from the 2 pi, this SCR do not start conduction, since we are not provide the gate pulse. After the some angle delay, that means after the 2 pi, some delay angle, that is alpha, again gate pulse supply given to the SCR. Okay, so at this instant of the positive half cycle, SCR again start to conduct up to 4 pi. Okay, so output voltage waveform just look like in this way. Okay, this is your output voltage waveform. जब थायरिस्टर कंडक्ट करना शुरू करेगा उस इंस्टेंट से मेरा क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म जो होगा वही हम लोग का इनपुट वोल्टेज का जो वेवफॉर्म होगा उसी को फॉलो करेगा आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म. ओके, pi to 2 pi plus alpha, 0 voltage in output. Okay, and again 2 pi plus alpha to 4 pi, you will get the output voltage like this. Okay, so this waveform repeat after a 2 pi plus alpha, after a 2 pi plus alpha. Okay, so now just we want to find out the average output voltage of this waveform. So just anyone tell me how we can find out the average voltage. Anyone? And one more point here, since the load is pure resistive, so the output voltage current waveform is also be similar to the average output voltage. Okay, and this is your voltage across the thyristor. Okay,
and it conduct, so output voltage is 0, and it does not conduct, follow the sinusoidal input voltage waveform. Up to this point क्या हो रहा था, कंडक्ट नहीं कर रहा था अल्फा तक, ये साइनसोइडल वोल्टेज जो इनपुट का है उसी को फॉलो करेगा, ठीक है। जिस इंस्टेंट पे ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, from that instant we will get the zero output voltage. So I have just shown along the omega t axis. Okay. So this is the basic waveform: average output voltage, average output current, and the average voltage across the thyristor. So have any confusion? Anyone in any waveform? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें वेवफॉर्म में? हेलो, सर्किट डायग्राम और वेवफॉर्म में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं बोल रहे हो? नो सर। अब just tell me how we can find out the average output voltage. Since formula I have already explained, for any wave shape how we can find out average output voltage. Based on that formula, just put this wave shape and just find out the average output voltage. क्या था फॉर्मूला, क्या था एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालने का? किसी को याद है? एवरेज आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने का क्या था फॉर्मूला? किसी को ध्यान नहीं है क्या? हेलो, अनकंट्रोल के लिए तो हम लिखे थे, ड्राइव किए थे फॉर्मूला। कोई भी वेवफॉर्म यदि है, सपोज xt, कोई भी वेवफॉर्म यदि xt है, then how we can just find out the average output average output voltage? Vm by pi सर। Vm by pi, वो फाइनल वैल्यू आ रहा है Vm by pi, ठीक है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज Vm by pi, उसका फॉर्मूला कैसे आता था, कैसे ड्राइव किए थे? Vm by pi, ये चीज मैं चाह रहा ना। इस वेव शेप के लिए भी तो, सबके लिए तो वैल्यू सेम नहीं रहेगा ना, लेकिन फॉर्मूला जैसे ड्राइव करते वो सेम रहेगा। वेव शेप यदि डिफरेंट हो जाएगा तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा, बट फॉर्मूला ऑलवेज सेम। तो फॉर्मूला क्या था बेसिक, कैसे इंटीग्रेट करके हम लोग फाइंड आउट किए थे Vm by pi, वो बताना है। Vm by pi हम लोग कैसे लाए थे? जो चीज ध्यान में रखना चाहिए वो चीज नहीं रहा है। एक पार्टिकुलर केस का फाइनल वैल्यू एवरेज वैल्यू है Vm by pi। फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी हम लोग फाइंड आउट करना है वेव शेप का, यदि सिग्नल xt है, ठीक है, यदि कोई भी सिग्नल xt की जगह पे यहाँ कोई भी सिग्नल हो सकता है, xt इक्वल टू एवरेज वैल्यू यदि इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते कैसे? कैपिटल x सफिक्स में 0 दे करके, ठीक है, सफिक्स में 0 दे करके, ठीक है, इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, जनरल फॉर्मूला हम बोल रहे हैं, ठीक है, 1 by time period represented by capital T, integration of 0 to t, that means 0 to time period, xt dt, okay, xt dt, dt, यहाँ पे हम लोग को पुट करना है। यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है इस वेवफॉर्म के लिए? टाइम पीरियड कितना है? एवरेज आउटपुट वोल्टेज का जो वेवफॉर्म आ रहा है, इसमें टाइम पीरियड कितना है?
साइनसोइडल को फॉलो कर रहा है ना, तो 0 to 2 पाई रहेगा ना, टाइम पीरियड 0 to 2 पाई है नहीं? हेलो, यस सर, 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई के बीच में जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग xt की जगह पुट करेंगे, ठीक है? 0 to 2 पाई के बीच में जो भी वैल्यू आएगा xt की जगह उसको हम लोग पुट करेंगे। यदि हम लोग बात कर रहे हैं इस वेव फॉर्म का, तो 0 to 2 पाई में क्या है, 0 टू यहाँ तक अल्फा है, एंगल किसे रिप्रेजेंट किए हैं, अल्फा से, जिसको डिले एंगल बोलते हैं, डिले एंगल। इस एंगल के बाद हम लोग गेट पर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? 0 to अल्फा तक में क्या आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, कुछ 0 है। 0 है। 0 to अल्फा तक 0 हो गया xt के जगह, ठीक है? अब xt की जगह वैल्यू मिल रहा है हम लोग को vm sin अल्फा, किस इंस्टेंट पे, अल्फा टू पाई तक, नहीं, अल्फा टू पाई तक xt का वैल्यू क्या मिल रहा है, vm sin अल्फा, ओके, sin ओमेगा टी या sin अल्फा। अब पाई टू 2 पाई के बीच में क्या मिल रहा है, अगेन 0, पाई टू 2 पाई के बीच में अगेन क्या मिल रहा है, 0। तो तुमको लिखना है यहाँ पे वैल्यू वेव शेप को देख करके, ठीक है, वेव शेप को देख करके। इस पार्टिकुलर केस के लिए यदि हम लोग लिखना चाहें इस वेव शेप के लिए, एवरेज वोल्टेज हम लोग रिप्रेजेंट करें V से, कैपिटल V से, ठीक है, x की जगह पे, तो कैपिटल V0 कैपिटल V0 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड की जगह कितना है वैल्यू, टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई, हम लोग t की जगह कितना पुट करेंगे, 2 पाई, दैट मींस 1/2 पाई। अब इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, दैट मींस कहां से कहां तक, 0 to t, 0 to t की जगह क्या आ जाएगा, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, ओके। यहाँ पे क्या लिखना है, V0t x0t की जगह क्या लिखेगा, V0t dt, V0t dt, V0t V0t t, या इधर ओमेगा टी लिखना है तो ओमेगा ओमेगा टी लिख सकते हैं, ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी है ना, V0 ओमेगा टी, तो डी ओमेगा टी हो जाएगा। अब इसका जो लिमिट का वैल्यू लिखे हम लोग 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई के डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, दैट मींस किसी पी तक 0 आ रहा है, किसी तक v मैक्सिमम साइन ओमेगा टी आ रहा है, ये इसका लिमिट उसी के करस्पॉन्डिंग ब्रेक कर लेना हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, जस्ट 1/2 पाई, 1/2 पाई पाई। अब इसको ब्रेक कर रहे हैं, 0 to 2 पाई को किस पीरियड में 0 आ रहा है, किस पीरियड तक, कितना टाइम तक, ये हो गया साइन ओमेगा टी आ रहा है, vm साइन ओमेगा टी आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू तो इसमें पुट कर रहे हैं, 0 to 2 पाई तक हम लोग को जाना है ना, तो पहला क्या करते हैं हम लोग, 0 to अल्फा तक देखते हैं, 0 to अल्फा, 0 to अल्फा कितना है वैल्यू, V0t की जगह
हेलो, जीरो टू अल्फा की जगह कितना वैल्यू वी जीरो टी, जीरो ना। देखो फाइनल फॉर्मूला ध्यान रखने से बेहतर है किसी भी फॉर्मूला के लिए जनरल वैल्यू क्या होता है उस पर अप्लाई करने का। यहाँ जीरो टू अल्फा तक कितना है, जीरो। ये फॉर्म है कि नहीं? Yes, sir. सो जस्ट पुट जीरो फ्रॉम जीरो टू अल्फा। ओके, जीरो टू अल्फा जिसमें हम लोग लिख रहे हैं उसमें क्या पुट करना है, इसी की जगह जीरो, ये जीरो रह जाएगा। इंटू इंटीग्रेशन कुछ भी करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो इंटू डी टी कर देते हैं, जीरो इंटू डी टी दैट मीन्स जीरो। प्लस अल्फा टू पाई के बीच में देखो कितना आ रहा है, अल्फा टू पाई के बीच में डी जीरो टी कितना आ रहा है, Vm sin alpha. वीएम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे क्या पुट करना है, अल्फा, अपर लिमिट कितना पुट करना है, पाई। और अल्फा टू पाई में कितना आ रहा है, वीएम साइन ओमेगा टी, dt की जगह तो यहाँ पे पुट कर रहे हैं कितना, वीएम साइन ओमेगा टी, वीएम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ओमेगा टी डी ओमेगा टी। हम लोग को कहाँ तक जाना है, 2 pi, sir. टू पाई। डी ओमेगा टी, तो पाई टू पाई कितना बचेगा, अब लिखना पड़ेगा क्या, पाई टू पाई। तो पाई टू पाई में कितना है वैल्यू, 0, sir. जीरो, दैट मीन जीरो हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हम लोग आ गए, जीरो टू स्टार्ट किए, पाई टू पाई के बीच में जीरो, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म क्या हो गया, जीरो। सेकेंड टर्म से बचेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेशन करके वैल्यू बता दो कितना है। फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म जीरो, so just integrate the second term and tell me the final value. इंटीग्रेट करो, कितना आ रहा है वैल्यू, भी जीरो। इंटीग्रेट करके बताओ, हेलो, एनीवन जस्ट टेल मी वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू। So just we can simply write v0 equal to 1 by 2 pi इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू पाई Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू पाई Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी।
इंटीग्रेशन करके वैल्यू बताओ कितना आएगा। कोई नहीं बता रहा है। हेलो, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं सिंपली? किसी का इंटीग्रेशन नहीं हुआ? वन बाय टू पाई कितना बचेगा यहाँ पे? वन बाय टू पाई अल्फा टू पाई वीएम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसका इंटीग्रेशन सिर्फ करके बताना हमको वैल्यू। शांत क्यों? हेलो, जियाउल, अल्फा टू पाई वीएम साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा? VM cos omega t। कितना आएगा? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कोस ओमेगा टी यस सर। और माइनस कोस ओमेगा टी। उसके बाद क्या करना है? लिमिट का वैल्यू पुट करना है अल्फा टू पाई। ठीक है, अल्फा टू पाई लिमिट पुट करना है तो कितना हो जाएगा? कॉस पाई माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, तो वन और माइनस माइनस प्लस वन कॉस अल्फा। कितना आ जाएगा? वन प्लस कॉस अल्फा वीएम बाय टू पाई वन प्लस कॉस अल्फा। आएगा कि नहीं? इसका इंटीग्रेशन करेंगे वैल्यू क्या आएगा? वीएम बाय टू पाई इंटू ऊपर में वन प्लस कॉस अल्फा। यही आ रहा है, चेक करके इसको देखो। चेक करके देखो और बताओ। तो एवरेज वैल्यू इज योर Vm by 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। और इसको यदि हम लोग कंपेयर करें अनकंट्रोल रेक्टिफायर से, अनकंट्रोल रेक्टिफायर से यदि कंपेयर करें तो उसका कितना आ रहा था? उसका वैल्यू कितना आ रहा था? Vm by पाई आ रहा था ना अनकंट्रोल रेक्टिफायर के लिए। अनकंट्रोल रेक्टिफायर के लिए कितना आ रहा था? Vm by पाई। यस सर। देखो अल्फा के जगह यदि जीरो पुट कर देते हैं दैट मीन्स सेम इंस्टेंट से स्टार्ट होता है कंडक्शन। यदि थायरिस्टर की जगह प्योर डायोड रहता था दैट मीन्स क्या होता था कि वो वेवफॉर्म कहां से रिपीट होता था? जीरो से। ठीक है, वेवफॉर्म कहां से अनकंट्रोल के लिए रिपीट होता था? जीरो से स्टार्ट हो जाता था। तो अल्फा की जगह जीरो पुट कर देते हैं दैट मीन्स डिले जीरो यदि पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? सेम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी अनकंट्रोल रेक्टिफायर एंड कंट्रोल रेक्टिफायर। जैसे जैसे अल्फा का वैल्यू चेंज करेंगे, सपोज करो अल्फा का वैल्यू डिक्रीज करके जीरो तक ले आए तो क्या हो जाएगा? जस्ट सिमिलर टू दी अनकंट्रोल रेक्टिफायर वेवफॉर्म। ठीक है, जैसे जैसे अल्फा का वैल्यू इधर इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे ये वेव फॉर दैट मीन्स एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है,
उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि V1/2 पाई Vm/2 पाई इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का वैल्यू जैसे चेंज करेंगे आउटपुट वोल्टेज मेरा चेंज करेगा, क्योंकि ये आउटपुट वोल्टेज जो है वो कोसाइन अल्फा पे डिपेंड कर रहा है। नहीं, नेक्स्ट इसका आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं हम लोग? आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? आरएमएस वैल्यू का ध्यान में है या नहीं? Vm/√2 sir. Vm/√2। फिर वही चीज है, तो लोग फाइनल फार्मूला बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं कि कैसे जनरल वेव शेप से हम लोग ड्राइव करेंगे। जैसे वेव शेप तो चेंज कर जा रहा है ना, वो Vm/√2 था किसके लिए? जब कंडक्शन स्टार्ट हो रहा था जीरो से, ठीक है, जब कंडक्शन जीरो से स्टार्ट हो रहा था तब आ रहा था Vm/√2, लेकिन हर शेप के लिए तो सेम नहीं आएगा ना, इसका शेप तो चेंज कर जा रहा है, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। जो जनरल फॉर्मूला है किसी भी वेव शेप का आरएमएस वैल्यू या एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने का, वो फॉर्मूला सेम रहेगा। वहां पे वैल्यू वेव शेप का वैल्यू पुट करके और फाइंड आउट करोगे वो डिफरेंट आएगा। उसका जस्ट फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, तो लोग उसका टाइप करो वैल्यू। उसका देखो आरएमएस के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, यहां से कैपिटल ब्रैकेट ले लेते हैं और 1 बाय टाइम पीरियड 0 टू टाइम पीरियड x² t dt होल टू द पावर 1/2। फॉर्मूला नोट कर लो, ठीक है, तुम लोग यहीं पे दिखा दे रहे हैं इसी में। यहां से ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं 1 बाय टाइम पीरियड 0 टू टाइम पीरियड xt की जगह x² t और होल टू द पावर 1/2, दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय टाइम पीरियड 0 टू टाइम पीरियड x² t dt। अब इस पे इस शेप को vt को पुट करो और वैल्यू ड्राइव करो। अब निकल जाएगा कि नहीं? हेलो, क्या करना है इस पे, स्क्वायर रूट ऑफ, दैट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय टाइम पीरियड 0 टू टाइम पीरियड x² t dt। टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड तो सेम रहेगा 1/2 पाई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू इस पे 0 होगा, इस पे 0 होगा, सेम यही वाला चीज मिलेगा अल्फा टू पाई तक में। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, x² t dt है, तो क्या हो जाएगा Vm² sin स्क्वायर ओमेगा t d ओमेगा t। समझ में आया कि नहीं बोलो? सेकेंड टर्म क्या हो Yes जाएगा, sir. Vm² sin स्क्वायर ओमेगा t, चूंकि x² t है, हो जाएगा उसके लिए होल टू द पावर 1/2 या स्क्वायर रूट लिख रहे हो तो वही चीज आएगा। अब Vm² और साइन स्क्वायर ओमेगा, साइन ये तो कांस्टेंट है Vm, इसको तो बाहर निकालना है। साइन स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, साइन स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन हाउ यू कैन फाइंड आउट? We are able to find out sin square omega t directly. Integration of sin square omega t, can we find out directly? जैसे sin ओमेगा टी का माइनस cos ओमेगा टी होता है या cos ओमेगा टी का sin ओमेगा टी होता है, इस तरह से क्या हम लोग sin स्क्वायर टी का sin स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं? No sir. नहीं निकाल सकते हैं, ओके। इसमें क्या करना पड़ेगा, sin या cos के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। तो sin स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2
लिख सकते हैं कि नहीं? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूला जो होता है sin ओमेगा टी sin स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू उस Yes, फॉर्मूला sir. को लिख करके और उसके बाद क्या आ जाएगा cos 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो cos 2 ओमेगा टी का तो हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेशन ना, cos 2 ओमेगा टी का तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उसमें इंटीग्रेशन करके वैल्यू बताओ, लिमिट पुट करो। जस्ट लिमिट पुट करके उसका इंटीग्रेशन करो, sin स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू पुट करो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। जस्ट टेल मी फाइंड द वैल्यू। होगा कि नहीं? अब आप तो कर सकते हैं हम लोग। Yes, sir. कर सकते हैं. जस्ट उसको ट्राई करने की कोशिश करो। This is the mathematical derivation. Simply just integration and just solve this simple equation. अटेंडेंस का तुम लोग का इतना किया जा रहा है, अटेंडेंस बहुत कम क्यों है क्लास में? जियाउल अटेंडेंस के लिए कोई नहीं करता है। Yes, sir. अटेंडेंस तो तुम लोग का इतना कंपलसरी है ना, क्योंकि लैब में भी अटेंडेंस नहीं डाला है। नहीं मालूम sir. So just we continue one more class for the lab session, and in that period we just saw the MATLAB simulation of this waveform. Okay, so just continue one more period after this session within 1 minute. Okay, sir. Okay, so इंटीग्रेशन हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा? Yes, yes, sir. करके देखो तो हो रहा है कि नहीं? सिंपली क्या करना, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, उसको जस्ट सिंपली इंटीग्रेशन करना है। जस्ट सॉल्व करो तुम, बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। vm by root 2 आ रहा है कि नहीं, उसको जस्ट वेरीफाई करना है। vm by root 2 नहीं आएगा, vm by root 2 नहीं आएगा क्योंकि वेव से चेंज हो जा रहा है हम लोग का। ठीक है, वेव से चेंज हो जा रहा है। इसमें आएगा कोसाइन cos अल्फा के टर्म में आएगा। सिमिलर टू जैसे एवरेज वैल्यू 1 प्लस cos अल्फा इंटू vm by 2 पे आ रहा था ना, आरएमएस वैल्यू भी जो है वो cos अल्फा के टर्म में आएगा। डायरेक्टली vm by root 2 नहीं आएगा, vm by root 2 आएगा सिर्फ किसके लिए, जब अनकंट्रोल रेक्टिफायर रहेगा तब vm by root 2 आएगा। Yes. ठीक है, तो जस्ट we start the next class, and just stop here.